Another name of adjective is describing word. Okay, don't write. I will tell you when to write. Only then you write. First of all, understand what is an adjective. It is also called a describing word. अब इसके नेम से पता चल रहा है कि ये किसी को describe कर रहा है, ठीक है? तो ये किसको describe करता है? It describes noun or pronoun. That means it tells something about noun or pronoun. Now you know now what is a noun or a pronoun? Noun pronoun तो पता है कि वो भी नहीं पता है. What is a noun? Pronoun. Okay, noun आप लोग गेम खेलते हैं ना, person, place, animal, thing. मैम पर्सनल प्रोनाउन. मैम नाउन मतलब सब्जेक्ट. मैम यू, नाउन he, मतलब her, प्रोनाउन. they, them, but, it are the pronoun. See, आपका क्या होता है कि नाउन जैसे आप नाउन है, बोलो. मैं वो नाउन मतलब वो होता है कि जो नेम से वो होता है, और जो प्रोनाउन मतलब वो होता है कि वो नेम से नहीं होता. ये चीज समझ में नहीं आया मुझे, चलो ठीक है. ओके, नाउन क्या होता है? पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग. और प्रोनाउन ऐसे वर्ड्स जो नाउन की प्लेस पर यूज होते हैं, ठीक है? आप और मैं नाउन है, पर्सन है तो नाउन है, कोई थिंग होता है वो भी नाउन है, कोई प्लेस है, रूम है, सिटी है, स्टेट है, पार्क है. ओके, ये सब क्या है? नाउन. और एनिमल भी, और कोई थिंग, कोई भी चीज नाउन होती है, ठीक है? और नाउन की प्लेस पर जो वर्ड्स यूज होते हैं वो प्रोनाउन. जैसे बॉय के लिए ही, गर्ल के लिए शी, किसी थिंग के लिए इट, किसी एनिमल के लिए इट. तो ये सारे प्रोनाउन है, ठीक है? अब देखो क्या होता है. एडजेक्टिव क्या होता है? डिस्क्राइबिंग वर्ड. Suppose if I talk about the room, okay, so I will say this is a small room. अब देखो इसके अंदर नाउन क्या है? कोई पर्सन, कोई प्लेस, कोई एनिमल, कोई थिंग है इसमें सेंटेंस में? रूम, स्मॉल रूम. रूम है, ठीक है, ये प्लेस है, तो ये नाउन है. अब इस नाउन के बारे में एक वर्ड कुछ बता रहा है. इस नाउन के बारे में कौन सा वर्ड बता रहा है कि किस तरह का नाउन है? व्हाट काइंड ऑफ रूम? स्मॉल. Yeah, small. So this is adjective. इसने describe किया ना रूम को, describe किया रूम को, तो this is adjective. Okay, अभी मत लिखना. I have a beautiful dress. अब इसमें नाउन कौन सा है? कोई चीज, कोई थिंग है नाउन? ब्यूटीफुल के बाद क्या लिखा है? ड्रेस. मैम ड्रेस और एडजेक्टिव है ब्यूटीफुल. ड्रेस नाउन है, और अगर हम पूछे और एडजेक्टिव व्हाट काइंड ऑफ ड्रेस, अगर हमने पूछा व्हाट काइंड ऑफ ड्रेस, तो ये आंसर आया ब्यूटीफुल. So this is adjective.
अभी इतना आप नोट कर लो पहले। मैम डन। डन। यस मैम डन। Yes, ma'am, done. Diana, you have done. Yes, ma'am. अब मैम हमें ये लिखना है। मैं बता रही हूँ, पहले मुझे करते दो, उसके बाद ओके फिर मैम। आप लोग करोगे। चलो, now you can. मैम थोड़ा जूम करो ना। मैम थोड़ा जूम करो, थोड़ा ब्लर दिख रहा है। हाँ ओके, करते। Now okay. यस मैम नाउ ओके।
मैम ये डेमोन्स्ट्रेटिव लिखा है एडजेक्टिव. Yes, demonstrative. STARTAV. मैम कंप्लीट. मैम 1 second. मैम डन. मैम last one is this. Interrogative. मैम डन. मैम done. Okay. See now. First is adjective of quality. Okay. Now, suppose if you ask the question, what kind of, this question you will ask on noun. Okay, you will ask this question on noun. Then whatever the answer you will get, that will be adjective of quality. Okay. Now suppose okay. Now see, in this sentence we have some nouns. This is noun, noun, and noun. We have three nouns. मैम adjective is huge. Wait. Huge Now and colorful. we will ask the question, what kind of, on each noun. What kind of Sheena? No answer. That means no adjective for her. What kind of vase? Huge. Huge. So this will be adjective of quality. Then what kind of flowers? Colorful. Colorful. So again this will be- Colorful. So again, this will be adjective of quality. Okay? So this much you write. Dhara, you click on your video. Oh, sorry, there it is there. Ma'am, my work is done. Okay. Ma'am, I also.
Then done. I also done. Now adjective of quantity. Question will be how much. Now see, in this sentence, food is noun. We will put a question. Don't write. Don't write. We will put a question. How much food? What answer do you get? Enough. 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 So this is adjective of quantity. Now in this sentence, they have sufficient milk for every member. Milk and member, both are nouns. So how much milk? Sufficient. Sufficient. So this will be every is not how much answer. This is not the answer of how much. That is the different, okay? Now write this much. Ma'am, done. Ma'am, done. Done.
Okay. Now see, in this sentence, members, family, they both are noun. Okay. So now question, how many members? 6. 6. So this is adjective of number. Now family, how many family? No answer. Okay. So now move to next. Some students are very naughty. So students. Some. How many students? Some. Some. Adjective of number. Now do this. Okay, ma'am. Ma'am, done. Ma'am, done. तुम लोग Ma'am, साथ done. में लिख रहे हो क्या? Ma'am, done. अरे बात से। What is going on? Mute yourselves. Now, which one is the next? Demonstrative. Yes, ma'am. No. Interrogative. कोई भी Ma'am, है। it is last. Interrogative is. Demonstrative adjective. Demonstrative. These are the words to be used, but you have to mind that ध्यान आपको मना नहीं किया लिखने के लिए, but you have to mind that whenever you are using these words, after these words there should be a noun. एकदम से इनमें से किसी भी वर्ड के बाद वाला जो वर्ड है वो होना चाहिए नाउन. चलो अब जरा कोई सेंटेंस बनाओ इसका. This is What? Ma'am, this is a new pen. This के बाद is नहीं आना चाहिए, उसके बाद कोई नाउन आना चाहिए. This pen, This pen is That new. family is very healthy. हाँ, that family is very healthy. This pen is new. ये लिख दो Yes. पहले ये वाला. This pen is new. These two are best friends. Two is not a noun. These friends are playing with each other. मैम this के बाद क्या? These, THESE, these friends are playing with each other. This. मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है. THESE, these
friends are playing with each other. अब किसका बाकी रह गया? दिस दैट का हो गया, these का हो गया, those का बाकी है. मैम दिस हो गया, दैट का बाकी है मैम, दैट और दोस्त का बाकी है. That family is healthy. Those books are yours. Those books are yours. मैम डन. Done. मैम डन. चलो अब interrogative adjective. ये सारे वर्ड्स जो है हम जब भी सेंटेंस की स्टार्टिंग में यूज करेंगे, इनके एकदम बाद कोई नाउन आएगा तो ये वाले जो वर्ड्स हैं वो इंटरोगेटिव एडजेक्टिव रहेंगे. जैसे कि कुछ वर्ड में सोचना नहीं पड़ेगा आपको. What children are doing? No, What? ma'am. Who are you? To whom you are talking? देखो, whose pencil it is. Whose pencil is it? तो whose का हो गया. मैम 1 सेकंड, हमको ये पहले ऊपर वाला लिख देने दो. whom, what, when, where, which, Ma'am, why, how, ma'am, Yes. what children are doing? नहीं. What children do you follow? Yeah, what religion do you follow? What religion do you follow? Who नहीं आएगा इसमें ना, who में नहीं है. what religion do you follow? What religion? What religion do you follow? Ma'am, where that girl is. Correct. Okay. Then थर्ड वन क्या लिखना है मैम? 2-3 लिख दो examples. मैम थर्ड वन क्या लिखना है? 2-3 examples you can write. Like which place you like to visit.
Why Shaina is sad? मैम लाइक टू गो है ना? हाँ कुछ भी लिख दो यार. Like to visit, like to go. मैम इनमें से सबके लिखना है? नहीं नहीं, एक दो के लिख दो बस. ओके मैम डन. Then after that, I'm done. distributive adjective. मैम वो आपने नहीं लिखा है इसमें, लिखवाया वो लिखना है हमें है मैम. एरो करके. लिखवाया मैंने. हम लिखवाया है सबसे ऊपर. Distributive adjective, put the heading. Done. यस मैम लिख मैम लिया. डन. Now distributive adjective, bracket में लिख दो words each, every, either, neither. ईच, Each, every, either, neither. आइदर, EITHER, neither, NITHER. Ma'am, this 4 only. मैम डन. Okay. Then now you can write each boy is sincere in the class. Then Ma'am, every girl, every girls are in uniform. girls नहीं आएगा, every girl singular. Every girl got the chocolate. Either road can be taken. Either road, ROAD, road can be taken. मैम डन. 4. Done, ma'am. Neither bag is to be chosen. Yeah, is to be selected. Neither bag Bag is to be selected. to be. Done, ma'am. Done, ma'am. मैम डन. Now I am going to give you some sentences and you have to find out the adjective. Okay मैम. The first is 1 second मैम. Find the adjective. Yes मैम. I have called you several times. I have called. I have called you several times. SEVERA several times.
I have called you several times. Ma'am, second one. अरे let everyone write ना, ऐसे थोड़ी आप पर्सनली बोलोगे सेकंड, तो मैं सेकंड स्टार्ट कर दूं. Wait for everyone. He is a man of few words. He is a man of few words. Next, third, a live ass. L-I-V-E, live. A-S-S, ass. A live ass is better than a dead lion. मैम then के बाद Than a dead lion. मैम dead का spelling D-E-A-D. अच्छा ओके dead line. Done. Several persons were present. Several persons were present at the time. What time is it? क्या मैम? What time is it? Please mute, कहीं से बहुत noise आ रही है. Which pen do you prefer? Which pen do you prefer? He comes here every day. He comes here every day. Abdul won the second prize. क्या मैम? Abdul, A-B-D-U-L, Abdul won the second prize. How many you have written? मैम 8. मैम 8. 2 more. He was absent last week. He was absent last week. My uncle lives in the next house. मैम My uncle lives in the next house. Incomplete. I'm done. Now I'm giving you 5 minutes time to underline.
Done, ma'am, with answers. Let everyone do. Ma'am, done. All have done? Yes, ma'am. Anyone left? No, ma'am. Yes, ma'am, मेरा बाकी है. Okay. Ma'am, done. Okay. Chalo. There is your first sentence and answer. Unmute. मैम वो एडजेक्टिव कौन सा है वो बोलना है ना. पहले आप sentence बोलो and after that you speak up the adjective. Yes, ma'am. I have called several times. Ma'am, adjective of distributive. What? Ma'am, Adjective क्या है? ma'am, adjective. क्या मैम? Adjective क्या है? मैम several adjective है. ठीक है. Several is adjective. Now Soumya, second, Yes, ma'am. yours. Yes, ma'am. He is a man of few words. Few. Correct. Few is adjective. Suhani, third. Yes. I live as is better than a dead lion. Live बोलते हैं Then. इसमें. हाँ? Than. नहीं. Live and dead दोनों है. Live, dead दोनों. Yes, Diana. Yes, ma'am. Several persons were present on time. Several. Correct. Okay, there is next. Fifth. What time is it? Time. हैं? What time is it? Time. What? What is the adjective here? Underline. Yes. Soumya, your turn. Which pen do you prefer? Prefer? Which adjective है? Yes, Suhani, next. He comes here every day. Every day. Every only, not a day. Every. Okay. There, Diana, your turn. Abdul wants the second prize. Second. Correct. Yes, there is ninth. He was accident last week. Last week. Adjective. मैम adjective है was. Last. Last is adjective. Soumya, next. My uncle lives in the next house. Lives. Next. Next. Okay, now today we have done this. In next session, I'll make you write the formation of adjectives.
Okay. For today, are you having any confusion in today's session? No, ma'am. Yes, ma'am. मैम Yeah. ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है तो उसमें सिर्फ ईच एवरी आइदर नाइदर ही यूज होता है. हाँ, यही वर्ड्स यूज होते हैं, लेकिन इन वर्ड्स के एकदम बाद कोई नाउन आना चाहिए, तभी ये आपके एडजेक्टिव है. दिस फोर ओनली. या ओके. Okay, so everyone, now you are having which session? अच्छा, SS. Okay. social science.
Good afternoon, everyone. Soumya, Dhairya, on your video. Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon, ma'am. Good afternoon. Dhyana is a new student. From which school, beta, you are? Ma'am, Kum. You have a Gujarat board textbook of social science, beta? No, मैम अभी हमने बुक्स लेने स्कूल में गए नहीं है. पर आपको लिस्ट दिया है, कौन सी बुक है? नो मैम, अभी तक कुछ नहीं है. Okay. And what about your science and other textbook? नो मैम, अभी कोई बुक्स ही नहीं आई. Okay. Some addition or something they have given. It is NCERT, Gujarat board or what? गुजरात बोर्ड. It is a Gujarat board, na? Okay. सुहानी, यस मैम. क्या हुआ? मैम अभी तक तो कुछ आया नहीं है. अच्छा, क्या करेंगे बताओ? आप कौन से ब्रांच से हो बेटा? मैम मैं गोता ब्रांच में. कौन से? इधर घाटलोडिया. घाटलोडिया ब्रांच. हाँ. ओके. सौम्य और धैर्य टेक्स्ट बुक आई? नो मैम. तो आज भी स्क्रीन शेयर करना है ना? Yes, ma'am. Visible to everyone? Yes. Okay. Dhyana, we have finished this chapter. उसमें हाफ पार्ट हमने फिनिश कर दिया है. मैं आज वापस थोड़ा ऐसा है तो रिपीट कर लेती हूँ. ये फर्स्ट चैप्टर है. अगर आपकी गुजरात बुक है, गुजरात बोर्ड बुक है, 2 बिग स्टेट्स. मैम. यस. मैम पर मेरा तो ये चैप्टर नहीं है. यस सुहानी, आज मैं ही बात करूंगी आपका. ठीक है, ये लेक्चर खत्म होने दो और मैं जो मेन हेड ऑफिस है ना वहां पे कॉल करती हूँ. ओके ओके. यू कैन लीव बेटा. सुहानी, आज आपको आज सॉल्यूशन मिल जाएगा. मैं बात करती हूँ अभी. ये लेक्चर खत्म होने के बाद मैं फोन करती हूँ. आपकी स्कूल कौन से बताई मुझे सुहानी?
है मेरे पास पोलो इंटरनेशनल स्कूल। है, लिखा हुआ है। हाँ प्रेक्षा मैम, सुहानी Yes, के actually. ग्रुप में संदीप सर ने ऑलरेडी एक ऑडियो क्लिप भेजा है, उसको बोलो सुन लेने के लिए। किसकी किसकी ग्रुप में मैम? सभी स्टूडेंट्स के ग्रुप में एक ऑडियो क्लिप भेजी है संदीप सर ने कल, अच्छा रिलेटेड टू अदर देन एनसीईआरटी, तो अच्छा। उसको सुन लेने को बोलना। ओके ओके। सुहानी मैम, सर ने, सुहानी यस सर ने एक क्लिप भेजी है आपके ग्रुप में, देख लो, आप उसको पहले सुन लो। हाँ। ठीक है, हम्म, चलो। ध्याना, ये चैप्टर हम लोग कर रहे थे। ओके, सौम्य यस मैम। और धैर्य, यस मैम। मैं वापस एक्सप्लेन कर रही हूँ, इन बिटवीन में क्वेश्चन आप लोग को पूछूंगी। ठीक है, हम लोग का ये एक्सप्लेनेशन खत्म हो गया है तो आपको आंसर देना है। ध्याना, सी दिस इज द चैप्टर 2 बिग स्टेट, यानी कि मैं पहले से स्टार्ट करूँ, जो हमारी हिस्ट्री है वो इंडिया की हिस्ट्री है, तो जो हिस्टोरियंस है उसने उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। ठीक है, हम जब 5th 6th में थे तो अब हमने पढ़ा था इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में, मोहनजोदारो के बारे में, राइट? फिर वो एंशियंट सिविलाइजेशन थी। वो कैसी सिविलाइजेशन थी? एंशियंट सिविलाइजेशन। अब जो सेकेंड पार्ट है वो है मेडिवल पीरियड। वो कैसा पीरियड है? मेडिवल पीरियड, यानी कि वो पीरियड जब राजपूत यहाँ पे रूल कर रहे थे, सुल्तान यहाँ पे रूल कर रहे थे, मुगल यहाँ पे रूल कर रहे थे, और थर्ड है वो है मॉडर्न पीरियड जो ब्रिटिश। तो 7th स्टैंडर्ड सोशल साइंस में हम पढ़ेंगे मेडिवल पीरियड के बारे में, वो हिस्ट्री के बारे में जब यहाँ पे राजपूत रूल करने आए थे। अब ये जो मेडिवल है वो 2 पार्ट में डिवाइड है, अर्ली मेडिवल पीरियड और लेट मेडिवल पीरियड। ठीक है, अर्ली मेडिवल पीरियड यानी कि जब यहाँ पे राजपूत राजा रूल करने के लिए आए थे। क्या करने के लिए आए थे? राजपूत राजा यहाँ पे रूल करने के लिए आए थे। तो इसमें 2 बड़े स्टेट्स, 2 बड़े किंगडम हुए थे। एक है कन्नौज और दूसरा है वतापी। वतापी तो इन लोग का भी बाकी है, हम सबसे पहले पढ़ेंगे कन्नौज के बारे में। ठीक है, ओके। आपको दिख रहा है ध्याना? स्क्रीनशॉट दिख रही है ना स्क्रीन? ओके, अब देखो, हम सबसे पहले पढ़ेंगे कन्नौज किंगडम के बारे में। ये कन्नौज किंगडम है, ये कन्नौज किंगडम है, उसके राजा है किंग हर्षवर्धन। अब ये कन्नौज किंगडम का राजा कैसे बना हम वो सब पढ़ेंगे। यहाँ पे दिया है 606 उसकी बर्थ रेट और ये 647 उसकी डेथ रेट, यानी इतने साल इस राजा ने रूल किया। ओके, यहाँ पे हमें फर्स्ट लाइन में दिया है किंग हर्षवर्धन वाज बोर्न इन 606 सीई। उसके फादर थे सौम्य, उसके फादर का नाम क्या है? सुहानी, एक मिनट। प्रभाकर वर्धन। किसकी वहां से आवाज आ रही है? किसकी वहां से आवाज आ रही है? कोई दिक्कत तो नहीं है ना किसी को इसमें? बंद कर दूं? चलो बच्चे, ये यहाँ पे ये आंसर इसमें आ रहा। अब बेसिकली मेन बात ये है, ठीक है ना, हम लोग क्या करना है? ओके, में आया है, इतना मोलर हो गया। साक्षी मैम, थैंक यू। ओके, चलो
Soumya, you have to answer. After the death of Harshvardhana's father, what is the name of Harshvardhana? प्रभाकर वर्धना. यस, ध्याना. तो हर्षवर्धना के फादर थे जिनका नाम था प्रभाकर वर्धना, और उनके एक एल्डर ब्रदर थे. धैर्य, एल्डर ब्रदर का नाम क्या है? मैम राजश्री राजवर्धन. राजवर्धन. अपना वीडियो ऑन करो बेटा. यस मैम. ठीक है. ध्याना, मैं आपसे वापस पूछ रही हूँ, हम पढ़ रहे हैं किंग हर्षवर्धना के बारे में. हर्षवर्धना कौन से साल बॉर्न हुआ था? 606. ओके. उसकी फादर का नाम क्या था? प्रभाकर वर्धन. उसके भाई का नाम क्या था? ब्रदर का नाम? राज्यवर्धन. और वो किस किंगडम का राजा था? थानेश्वर. किस किंगडम का राजा था? थानेश्वर. राज्यवर्धन को, सौम्य, किसने मारा था राजवर्धन को? राज्यवर्धन was killed by whom? Of God, शशांक. शशांक राजा है, उसने मारा था, जिसका किंगडम था गॉड. उसकी किंगडम का नाम क्या था? गॉड. अब हर्षवर्धन आपकी बहन थी, धैर्य, उसकी बहन का नाम क्या है? राजश्री. अब राजश्री को जेल में किसने डाला था? कौन से राजा ने जेल में डाला था राजश्री को? मैं बोलूं? हाँ धैर्य. यस मैम. देवगुप्त. और वो उसकी किंगडम का नाम क्या था देवगुप्त का? मालवा. मालवा. ओके. ध्याना, योर टर्न. यस मैम. What is the name of Harshvardhana's sister? राजश्री. Who imprisoned Rajeshri? देवगुप्त. What is the kingdom of Devgupt? मालवा. Malwa. Okay. Who killed Rajyavardhana? Dhyana. Who killed Rajyavardhana? शशांक. King of God. ओके. अब जब ये सब हुआ तो ऐसे सर्कमस्टांसेस में हर्षवर्धना को थानेश्वर संभालना पड़ा, जो उसके भाई का किंगडम था राज्यवर्धना. ठीक है. तो वो थानेश्वर का राजा बन गया. अब थ्रोन में आने के बाद इमीडिएटली आफ्टर असेंडिंग द थ्रोन उसने डिसाइड किया कि वो उसकी बहन को इम्प्रिजनमेंट से फ्री करवाएगा, यानी जेल में से उसको छुड़वाएगा. इन मीनवाइल उसकी बहन है वो देवगुप्त के क्लचेस यानी उसके चंगुल में से भाग के विंध्या फॉरेस्ट की तरफ भाग गई. कहाँ गई वो? विंध्या फॉरेस्ट. हर्षवर्धना उसकी बहन को ढूंढने के लिए वहां पे गया और एक बुद्धिस्ट हर्मिट के मदद से, ये बुद्धिस्ट हर्मिट का नाम है दिवाकर मित्र. बुद्धिस्ट हर्मिट का नाम क्या है? दिवाकर मित्र. उसकी मदद से उसकी बहन को बचाया सती करने से, कमिटिंग सती. धैर्य, व्हाट इज सती? मैम उसके हस्बैंड मर जाते हैं तब वो जिंदा आग में जल के मर जाती है. ओके. इट इज लाइक दैट. सती सिस्टम बहुत पुराना है. मेडिवल पीरियड और एंशिएंट पीरियड में ये प्रैक्टिस होता था कि जब किसी का हस्बैंड की डेथ हो जाती है तो उसी के फ्यूनरल पैर यानी उसी के चिता में उसे जिंदा बैठना होता है और उसको जल जाना होता है. तो जब राजश्री को देवगुप्त ने जेल में डाला तो कैसे डाला? वो देवगुप्त ने राजश्री का जो किंगडम था कनौज उसको कैप्चर किया, उसके हस्बैंड को मार डाला और उसे अपने साथ लेके गया. तो राजश्री को तो पता था कि अब उसका हस्बैंड नहीं है, तो वो विंध्या फॉरेस्ट में जाके अपने आप को खुद जिंदा जलाना चाहती. पर हर्षवर्धना को पता चल गया और उसने उसके बुद्धिस्ट हर्मिट, उसका दोस्त था जिसका नाम था दिवाकर मित्र, उसकी मदद से उसकी बहन की जान बचाई. और इस तरह राजश्री का जो किंगडम था कनौज वो भी हर्षवर्धना को मिल गया. ओके. उसके बाद हर्षवर्धना ने देवगुप्त, जिसने उसकी बहन को पकड़ा था, उसे डिफीट किया और वो मालवा भी
ले लिया उसने. Okay, now I am asking the question from this paragraph. Dhyana, Okay, ma'am. name the Buddhist hermit who helped Harshvardhana to stop Rajeshi from committing sati. Divaka. Okay. After that, Harshvardhana became the king of which kingdom? Rajshri's kingdom. Name Kanauj. Kanauj. Later he defeated whom? He defeated Devgupta. Okay. Clear? Now we'll come to the last paragraph. As part of his preparation to launch an attack to Shashank. अब उसकी बहन का तो उसने रिवेंज ले लिया. अब शशांक कौन है? जिसने उसके भाई को मारा था. तो उसने आसाम के राजा थे जिसका नाम था भास्कर वर्मन. पहले आसाम को कामरूप बोला जाता था. आसाम को क्या बोला जाता था? कामरूप. उसके राजा का नाम था भास्कर वर्मन. उसके मदद से, अलायंस यानी उसके मदद से उसने एक बड़ी सी आर्मी खड़ी की और शशांक राजा को हराया और मेजर पार्ट ऑफ किंगडम उसका ले लिया. इस तरह से मालवा, सौराष्ट्र भी उसके अंडर आ गया. ठीक है, समझ में आए यहाँ तक? Yes, ma'am. पर अब वो पुलकेशी को नहीं हरा पाया. पुलकेशी कहाँ है? साउथ इंडिया में था और उसकी डायनेस्टी का किंगडम का नाम क्या था? चालुक्य किंगडम. वो पुलकेशी को हरा नहीं पाया. 7 सक्सेसिव विक्टोरियस ईयर, 7 बार वो जीता. थानेश्वर बड़ा किंगडम नॉर्थ इंडिया में रहा. यानी कि हर्षवर्धन नॉर्थ इंडिया से बाहर नहीं जा पाया. ओके, क्लियर? Yes, ma'am. Now I'll ask the question from you. Okay. Which Harshvardhana took the alliance of which king to defeat Shashank? Bhaskar Varman. Okay, chalo. Harshvardhana was unsuccessful in defeating which king? Ma'am, South India's king. The name Name is over here, Pulkeshi. Pulkeshi. Okay. Now Dhyana, you have Yes, to ma'am. read this whole thing. Okay? और Okay. ये आपको PDF डाउनलोड करनी है क्योंकि मैं अगर होमवर्क दूंगी ये आप स्क्रीनशॉट ले लो. जो भी करना है. सौम्या, Yes, ma'am. धैर्य स्क्रीनशॉट ले लेते हैं. Ma'am, मैंने screenshots ले लिए. Now you have to read this. Okay. King Harshvardhan was born in 606 CE. After the death of his father, Prabhakarvardhan, Harshvardhan's elder brother, Rajvardhan ascended the throne of Thaneshwar. However, Rajvardhan was killed by the king of Good, Shashank. Their sister, Rajeshri, were Imprisoned. imprisoned by the king of Malwa. Devgupta, under the circumstances, as advised by the elder of the kingdom, Harshvardhan shoulders the responsibility of the Thaneshwar. Read from here. Immediately after ascending the throne, he decided to free his imprisoned sister Rajeshri. In the meanwhile,
she had escaped from the Escaped from the clutches of Devgupta and ran away into the Vidya forest. He went in search of his sister, and with the help of the people living in the forest and a Buddhist hermit Devyakar Mitra, stopped her from committing sati. Since Rajasri's kingdom, Kannauj, Kanoj. was without any king at that time, Harshvardhan became its ruler. Later he defeated Devgupta, the king of Malwa, as part of his preparation to launch an Attack on Shashank attack on Shashank. The good king, he formed an alliance. with the king of Kamrup, Kamrup. Bhaskar Varman, with the help of a large army. He defeated the good king and won over a major part of his kingdom. He also conquered Malwa and Malwa and Saurashtra. but was unsuccessful in defeating Pulkesh, king of the Chalukya dynasty. of South India after 7 Successive victorious years. Thaneshwar emerged as a large kingdom in North India. Okay. Now Harshvardhana's reign and its administration. Harshvardhana's personally supervised the administration. उसकी स्टेट की जो भी एडमिनिस्ट्रेशन होती थी उसको वो पर्सनली सुपरवाइज करता था, ट्रैवल करता था अलग अलग पार्ट ऑफ एम्पायर में. उसने उसकी डेली रूटीन 3 पार्ट में डिवाइड की थी. धैर्य, व्हाट आर द 3 पार्ट्स? Let Dhairya answer. Dhairya? Yes, ma'am. He divided his daily routine in 3 parts. Which are the 3 parts? Ma'am, can I say? Yes, Soumya. The first part was for administrative purpose, while the other 2 parts were devoted to public welfare and religious activity. Yes. Dhyana? So, daily routine into 3 parts. First क्या था? Administrative purpose के लिए. दूसरा था पब्लिक वेलफेयर के लिए और तीसरा था रिलीजियस एक्टिविटी के लिए. जो फर्स्ट पार्ट था वो एडमिनिस्ट्रेटिव पे ध्यान रखता था. दूसरा वो लोगों को मदद, वेलफेयर, यानी कि पानी की प्रॉब्लम हो, क्रॉप की प्रॉब्लम हो अगर उसके किंगडम में. और थर्ड थी वो रिलीजियस, यानी रिलीजन को लेके. यस. He was so diligent, यानी वो इतने उसके काम में डूब जाता था, डेडिकेटेड था उसके एडमिनिस्ट्रेटिव काम में कि कई बार वो मील्स यानी खाना भी भूल जाता था. ओके Okay, ma'am. Dhyana, you repeat, after that Dhairya will repeat because he didn't answer me. Okay. अच्छा एक काम करो, आप ये पूरा पढ़ लो. मैं Harshvardhan personally supervised the administration of his state by traveling Extensively.
extensively to different parts of his empire. He divided his daily routine into three parts. The first was for administration purpose, while the other two parts were devoted to public welfare and religious activity. He was so diligent in carrying out his administration responsibility that at time he even forget to have his meal. ओके, क्लियर? आपको इसमें कोई डाउट है बेटा? No, ma'am. धैर्य? Yes, ma'am. चलो आप आंसर करो मुझे। और उसकी डेली रूटीन 3 पार्ट में डिवाइड थी, कौन से 3 पार्ट में डिवाइड थी उसकी डेली रूटीन? Yes, ma'am. Ma'am, first two towards administration purpose. Second, public welfare, and third, Religious activity. religion activity. ओके, now this things to know you have to write. ध्याना, टू हेल्प इन द एडमिनिस्ट्रेटिव, उसकी जो फर्स्ट डेली रूटीन थी उसमें जो एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस थी, तो ये एडमिनिस्ट्रेशन में हर्षवर्धना ने कुछ मिनिस्टर्स अपने पास रखे थे। ठीक है ध्याना, यू हैव टू टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस एंड यू हैव टू राइट दिस। जैसे कि हर्षवर्धना हैड कमांड थिंग्स टू नो। Okay. हर्षवर्धना हैड अ कमांडर इन चीफ ऑफ आर्मी, उसके आर्मी में कमांडर चीफ थे। प्रतिहारा द्वारपाल, Okay, ma'am. संधि विग्रह का फॉरेन मिनिस्टर, राजदूत एम्बेसडर, प्राराज मंत्री, महाधनदायक का चीफ जस्टिस, जस्टिस देने वाला, रजिस्टर करने वाला, डेथ रेट, बर्थ रेट, अक्षर पत्रिका। धैर्य, हुआ संधि विग्रह का धैर्य, Yes, ma'am. who was संधि विग्रह का Ma'am, फॉरेन मिनिस्टर, जो दूसरे कंट्री के साथ वो ट्रेड करते थे, तो वो ट्रेड को संभालने के लिए जो मिनिस्टर था। ठीक है, सौम्य हु वाज रजिस्ट्रार, रजिस्ट्रार कौन था? अक्षर प्रतीक पतलिखा, अक्षर पतलिखा। ओके चलो, नाउ इम्प्रिंट्स बाय हर्षवर्धना, ये वाला पार्ट हम लोग पढ़ेंगे ना अभी। हर्षवर्धना ने क्या बिल्ड किया था? काफी रेस्ट हाउस, वेल्स, स्टेप वेल्स, लेक, मठा, विहारास, और उसने प्रोहिबिट किया था एनिमल स्लॉटर। व्हाट इज एनिमल स्लॉटर? सौम्य, व्हाट इज एनिमल स्लॉटर? मैम एनिमल को बचाना, मार देते हैं ना, उससे बचाना। हाँ, एनिमल को काटना, उसको स्लॉटर बोलते हैं। तो हर्षवर्धना ने बहुत सारे रेस्ट हाउस बिल्ड किए थे, वेल किए थे, स्टेप वेल्स के वाव, लेक, मठ और विहारा यानी आश्रम, और उसने प्रोहिबिट यानी स्टॉप किया था एनिमल स्लॉटर, स्लॉटर यानी उनको काटना। ओके, हर साल वो एक मीट ऑर्गेनाइज करता था, बुद्धिस्ट रिलीजियस मीट। हर साल वो क्या ऑर्गेनाइज करता था? बुद्धिस्ट रिलीजियस मीट। और हर 5 साल में एक वो ह्यूज रिलीजियस कॉन्ग्रेगेशन हेल्ड करता था, और वो कहाँ पे हेल्ड करता था? प्रयाग। इस कॉन्ग्रेगेशन में वो बहुत ही जनरसली सभी ट्रेजर उसकी डोनेट करता था, यानी दान करता था। कई बार तो उसने जो ऑर्नामेंट्स पहने होते थे वो भी वो डोनेट कर देता था। ओके,
Dhyana, Yes, ma'am. every year Harshvardhana organized which meet? Buddhist religious meet. Okay. And every 5 years he held a religious congregation where? Prayuj. Prayag. Okay. Daksh, Aridharya. Name the famous Sanskrit poet and writer adorned Harshvardhana quote. Banbhat. Which two book he wrote, Soumya? हर्ष चित हर्ष चत- Charit. चित्रिका Harsh चरित्र Charit. हर्ष चरित्र and कंदेम्बरी Kadambari. Dharya, name the 3 plays written by Harshvardhana. Yes, ma'am. 3 plays written by Harshvardhana. Nagand. Naganand. Nagagand, Ratnavali, Priyadashika. Okay. Okay. Dhyana. हर्षवर्धना की किंगडम में एक संस्कृत पोएट था जिसका नाम था बनभट्ट. उसने 2 बुक लिखी थी, हर्षचरित और कादम्बरी. हर्षचरित से हमें किंग हर्षवर्धना के बारे में बहुत इंफॉर्मेशन मिलती है. किंग हर्षवर्धना खुद भी एक राइटर थे और उन्होंने 3 प्ले लिखी थी, नागानंद, रत्नावली और प्रियादर्शिका. ध्याना, यू हैव टू रीड दिस पैराग्राफ नाउ. Ma'am, the whole. ध्याना, Yes, ma'am. you have to read the imprints left by Harshvardhana this paragraph. Okay. Harsh built many rest house, wells, tap wells, lakes, mats, and villages, and also prohibited animal Slaughter. slaughter. Every year he organized a Buddhist religious meet, and every 5 years he would organize a huge religion congregation at Prayag. There he would donate Generously. generously till his entire Treasure was emptied. treasure was emptied, and would even get allowed to ornaments Wearing. Would be wearing at that he time. would be यानी wearing वो at जो the भी time. ornaments पहनते थे वो भी वो दे देते थे. Okay. The great Sanskrit poet and written writer Banbhat बनभट्ट. राइटर का नाम क्या है? बनभट्ट. Banbhat adorned he His coat. his coat, his farms works, His famous work. उसने 2 बुक लिखी थी. His famous work. Harshit and कादम्बरी. Kadambari, and famous even today. We came to know about many important aspects of King Harshvardhana's Harshvardhana. reign. Range from Harshcharitra. King Harsha himself was a writer and wrote 3 plays. 3 plays. Naganand, Ratnavali, and Priyadarsh. चलो अब हर्षवर्धना के वक्त
कौन सी यूनिवर्सिटी थी सौम्या? नालंदा। नालंदा यूनिवर्सिटी के प्रिंसिपल कौन थे? आचार्य शिलभद्रा। शिलभद्रा। और किसने ये प्रूव किया कि आर्सेनिक मर्क्यूरी ऐश मेडिसिन में यूज हो सकता है? धैर्य। Yes, ma'am. Who proved that iron, arsenic and mercury ash could be used in medicine? Ma'am, can I say? Wait, what Dhairya is doing? बोलो धैर्य, इतना वक्त क्यों लग रहा है? Ma'am, yes, ma'am. What? Ma'am, Acharya Nagarjuna. ओके, तो अब ये नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में है। ध्याना, आपने वीडियो क्या किया है? मैम वो बुक्स यहाँ पे पड़ी है ना, इसलिए। उसको ले लो। यस मैम। ओके, अब देखो, किंग हर्ष ने असिस्टेंट आचार्य शिलभद्रा से एक यूनिवर्सिटी बनाई थी, वर्ल्ड फेमस यूनिवर्सिटी थी नालंदा। ये यूनिवर्सिटी के पास एक एक्सेस था, यानी उनके पास पावर था कि वो 100 विलेजेस से टैक्स लेते थे, रेवेन्यू लेते थे, और ये जो टैक्स लेते थे उससे वो यूनिवर्सिटी को मेंटेन करते थे। दूसरे रिनावेंट एक केमिस्ट थे जिनका नाम था आचार्य नागार्जुना। इन्होंने ये प्रूव किया था कि आयरन, आर्सेनिक, मर्क्यूरी ऐश मेडिसिन में यूज हो सकता है। ठीक है, फिर ये नालंदा विद्यापीठ का पिक्चर है। ओके। अब थिंग्स टू डू। स्टूडेंट हैड टू क्लियर एन एंट्रेंस टेस्ट। यहाँ पे अगर आपको एडमिशन लेनी है तो आपको एक एंट्रेंस टेस्ट देनी होती है। एजुकेशन, पढ़ाई फ्री होती है, रहना फ्री होता है, पर पढ़ने के लिए एंट्रेंस टेस्ट देना पड़ता है। यहाँ पे यूनिवर्सिटी में बहुत बड़ी लाइब्रेरी थी जिसका नाम था धर्मागंज। ओके, चलो, नाउ यू फिनिश रीडिंग दिस पेज। फ्रॉम हियर यू हैव टू रीड। King Harsh extended all possible assistance to Acharya and made Nalanda into a world famous university. The university had access to revenue of 100 villages given to them by King Harsh from its upkeep and maintenance, यानी नालंदा यूनिवर्सिटी का ध्यान रखने के लिए। renowned chemist Acharya Nagarjuna, who provide that iron, arsenic and mercury ash could be used as medicines, also belonged to Nalanda University. Things to know, पढ़ लो। Students had to clear an entrance test for admission into Nalanda University. Free education, lodging and boarding were provided into Nalanda University. The extensive, बहुत बड़ी यानी extensive यानी huge, extensive library of Nalanda University was known as धर्मागंज। ये things to know का स्क्रीनशॉट ले लो। Done, ma'am. Okay.
लाइफ ऑफ द पीपल। अब यहाँ पे जो लोग रहते थे उनकी लाइफ कैसे थी। किंग हर्ष के वक्त एक चाइनीज ट्रैवलर था जो गया था। सौम्य, कौन था वो चाइनीज ट्रैवलर? हुइंग Wingsang. सैंग एक चाइनीज ट्रैवलर था जो किंग हर्षवर्धना के वक्त वहां पे गया था। टाउन और विलेज फोर्टिफाइड था। धैर्य, मैंने फोर्टिफाइड का मतलब क्या समझाया था? मैम 45 का मतलब सौम्य, क्या है 45 का मतलब? 45 नया बनाया हुआ। टाउन और विलेज के आजू बाजू वो क्या बिल्ड करते थे? गेटवेज। बड़ी वॉल। क्यों करते थे बड़ी वॉल? बड़ी वॉल क्यों करते थे? The system and intercaste marriages were Towns and villages of that time were fortified. Huge wall town और villages के आजू बाजू वो बिल्ड करते थे, जिससे क्या होता था, कोई भी आता नहीं था उन पे हमला ना कर पाए सीधा। तो बड़ी ह्यूज वॉल करते थे और बड़ा सा गेटवे रखते थे एंट्रेंस में। सोसाइटी 4 ग्रुप में डिवाइड था। कौन सा ग्रुप था? 4, कौन बताएगा? मैं बताओ। हाँ बताओ। मैम पूरा सिस्टम एंड नहीं, मैं 4 ग्रुप की बात कर रही हूँ। सोसाइटी वाज डिवाइडेड इनटू 4 ग्रुप। व्हिच वर दैट 4 ग्रुप? मैंने नहीं समझाया था। वर्ण, ब्राह्मण, याद आया? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैष्णव एंड शूद्र। कौन से 4 है सौम्य? बोलो वापस। ब्राह्मण, वैष्णव, क्षत्रिय, शूद्र। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैष्णव, शूद्र। ब्राह्मण यानी कि जो पूजा पाठ करते थे विलेज में। क्षत्रिय यानी जो सोल्जर्स, जो पूरे किंगडम को संभालते थे, प्रोटेक्ट करते थे। वैष्णव यानी कि जो ट्रेड करते थे। शूद्रस यानी कि ये पूरा विलेज साफ रखने वाले। ओके, तो ये सोसाइटी में 4 ग्रुप डिवाइडेड था। पर्दा सिस्टम और इंटरकास्ट मैरिज नॉट प्रेवलेंट, यानी नहीं चलता था, अलाउ नहीं था। क्या नहीं अलाउ था? पर्दा सिस्टम, घूंघट और इंटरकास्ट मैरिज, ये आप नहीं कर सकते हो। उसके अलावा सती, चाइल्ड मैरिज और पॉलीगमी स्टार्ट हो गई थी। सती तो हमने आपको समझाया अभी। चाइल्ड मैरिज आपको पता है, बहुत छोटे होते और शादी करवाना। पॉलीगमी का मतलब मैंने क्या समझाया था? किसको याद है मीनिंग ऑफ पॉलीगमी? मैम एक कास्ट से दूसरे कास्ट इंटरकास्ट मैरिज है। पॉलीगमी क्या होता है? एक से ज्यादा शादी करना। क्या करना? एक से ज्यादा बार शादी करना। ठीक है, तो ये स्टार्ट हो गए थे। अब वो लोकल डाइट में क्या खाते थे? तो मिल्क प्रोडक्ट जैसे कि व्हीट, राइस, फ्रूट, वेजिटेबल खाते थे। क्लीन कपड़े पहनते थे, व्हाइट कपड़े पहनते थे। मैन धोती और वुमेन साड़ी पहनती थी। ऑर्नामेंट्स, बैंगल, ब्रेसलेट, नेकलेस होता था, जो किससे बनते थे? फ्लावर्स से बनते थे। किससे बनते थे? फ्लावर्स। अब वो क्या एंटरटेन के लिए क्या खेलते थे? चेस एंड गेम ऑफ डाइस। वो खुद एंटरटेन के लिए क्या गेम खेलते थे? चेस एंड गेम ऑफ डाइस। उनको एंटरटेन करने के लिए कौन था? एक्रोबैट्स और कॉन्जरर। कौन था? एक्रोबैट्स एंड कॉन्जरर, जो एक विलेज से दूसरी जगह पे घूमते रहते थे। ध्यान, इतना पैराग्राफ पढ़ लो। information about the region उसको रेन बोलते हैं, रीजन भी नहीं बोलते, उसको क्या बोलते हैं? रेन। of King Harsh is able and from the Available from
available from writing of Chinese चाइनीज ट्रेवलर जिनका नाम है हुइंग सैंग। Sang. Town and villages of the time were fortified 45 and had huge gateway at the entrance. And at their entrance, the society was divided into 4 groups, while the पर्दा Parda सिस्टम system and intercaste marriage were not prevalent at prevalent that at time. that time. The custom of salt, sati, सती, child marriage and polygamy, polygamy had started by then. The local that डाइट यानी जो खाना खाते ना लोकल डाइट, वो लोग क्या खाते थे? that consist of milk and milk products, wheat, rice, fruits and vegetables. The wore clean, simple white clothes. They wore clean and simple white clothes. Men wore dhoti and women wore saris. Their ornaments were made from flowers. Chess Yes. and games of dice were popular means of Entertainment. entertainment. Acrobats and conjurers Conjurer. warned for village Wondered यानी घूमना. word for village to village entertaining peoples. People. Okay. अब दूसरा है कि वो ऑक्यूपेशन क्या करते थे. अब क्या है ऑक्यूपेशन? फार्मिंग एंड एनिमल हस्बेंड्री, फार्मिंग करना, कैटल रेयरिंग करना, गाय भैंस रखना, तो ये उनका मेन ऑक्यूपेशन था ऑफ पीपल. उसके अलावा जो राजा था वो क्या लेता था? रेवेन्यू टैक्स लेता था, 1/6 ऑफ द प्रोडक्शन. फार्मर जो भी प्रोड्यूस करता था उसका 1/6 वो रेवेन्यू लेते थे. उसके अलावा जो वैष्णव, 4 ग्रुप मैंने बताए थे ना, 4 ग्रुप, उसमें वैष्णव ग्रुप की बात की थी ना. ये जो वैष्णव है वो ट्रेड करते थे, इंटरनल और इंटरनेशनल ट्रेड. कैसा ट्रेड करते थे? इंटरनल और इंटरनेशनल ट्रेड. अब उस वक्त एक हाईवे बनाया था पाटलिपुत्र टू भरूच. ठीक है, किसके लिए? तो ट्रेड और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, ट्रेड और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स के लिए. अब आगे है गोल्ड और सिल्वर कॉइन्स भी कमर्शियल ट्रांजैक्शन के लिए. यानी जब ट्रेड करते थे वो लोग एक कंट्री से दूसरे कंट्री चीजें खरीदते थे, तो उनके कंट्री में, उनके किंगडम में, हर्षवर्धना के किंगडम में गोल्ड और सिल्वर कॉइन्स की इनफ्लो काफी हुआ था. व्हाट ओके. देन एक्सपोर्ट ऑफ डिफरेंट मटेरियल. अब वो क्या एक्सपोर्ट करते थे, क्या दूसरे कंट्री को सेल करते थे? स्टैच्यू, आइवरी, carved wooden pieces were exported. एक्सपोर्ट ऑफ डिफरेंट मटेरियल, वो अलग अलग मटेरियल एक्सपोर्ट करते थे फॉर बिजनेस रिलेशन विथ रोम. और किंग हर्षवर्धना के वक्त सबसे ज्यादा किसके साथ होता था? उनकी ट्रेडिंग रोम के साथ. किसके साथ होती थी? रोम कंट्री के साथ उनकी ट्रेडिंग होती थी, जिसकी वजह से उनमें काफी सारा गोल्ड हर्षवर्धना के वक्त इंडिया में आया. ओके. अब पीपल कौन सा रिलीजन फॉलो करते थे? धैर्य. पीपल कौन सा रिलीजन फॉलो करते थे? धैर्य. सौम्य आंसर. धैर्य को सारी चीजें 2 टाइम लिखने देने वाली हूं मैं. फार्मिंग एंड एनिमल हेल्प.
husbandries, नहीं बेटा, कौन सा रिलीजन करते थे, ऑक्यूपेशन नहीं, कौन सा रिलीजन था वहां पे, कौन से रिलीजन थे? हाँ बोलो। हाँ, हिंदुज्म, बुद्धिज्म और जैनिज्म। पीपल, ध्याना, पीपल कौन से रिलीजन फॉलो करते थे? Jainism, Buddhism, एंड हिंदुज्म। and Hinduism. ओके, क्लियर? यहाँ पे समझ में आया ध्याना? Yes, ma'am. yes ma'am, Yes, ma'am. अब हुइंग सैंग के बारे में हम पढ़ेंगे। किसके बारे में हम पढ़ेंगे? wings and ये चाइनीज ट्रैवलर है। इंडिया में कब आया था? जब हर्षवर्धन यहाँ पे, हर्षवर्धन यहाँ पे था और बुद्धिज्म पढ़ने आया था नालंदा यूनिवर्सिटी में 5 साल के लिए। ओके, Chinese traveler Huang Sang visited India during Harsha's reign and he studied नालंदा यूनिवर्सिटी में कितने साल के लिए वो बुद्धिज्म पढ़ा? 5 years. अब थिंग्स टू नो, इसकी स्क्रीनशॉट लेनी है ध्यान आपको। Done, ma'am. ओके, हुइंग सैंग इंडिया 15 इयर्स के लिए रहा। टोटल कितनी इयर्स के लिए रहे वो? 15 इयर्स। और अलग अलग जगह में, 15 में से 5 साल तो वो नालंदा यूनिवर्सिटी में रहा। उसकी बुक जो होती है, हुइंग सैंग जब यहाँ पे आया था तो उसने बुक लिखी थी, वो बुक को ट्रैवलॉजी बोलते हैं। उसकी बुक में उसने डिस्क्राइब किया है कि उस वक्त पे हर्षवर्धना की सोसाइटी कैसी थी, पॉलिटिकल कैसी थी और वो क्या रिलीजन फॉलो करते थे। जब वो 1645 में वापस चाइना गए, सेंट्रल एशिया होके, उसने उसके साथ बहुत सारी बुक, रेलिक्स और स्टैच्यू लेके गया। जब वो हर्षवर्धना के वक्त था तब उसने 6th बुद्धिस्ट रिलीजियस कॉन्ग्रेगेशन प्रयाग में हुई थी, वो उसने अटेंड की थी। ओके, अब दूसरा ह्यूइंग सैंग ने उसके बुक में क्या लिखा है? उसने ये लिखा था कि हर्षवर्धना के किंगडम में कितने मठ थे? टोटल 100 बुद्धिस्ट मठ थे। कितने मठ थे? 100 बुद्धिस्ट मठ थे। पीपल कैसे थे? सिंपल थे, पायोस थे, पीसफुल थे, सिंपल सादे थे। ठीक है, और अगर आपने किसी को चीट किया या किसी की प्रॉमिस तोड़ी तो वो सिंफुल मानते थे वहां के लोग। सिंफुल यानी कि पाप। ओके, क्लियर टिल नाउ? Yes, ma'am. yes ma'am, ध्याना? Yes, ma'am. ओके, ध्याना। अब ह्यूइंग सैंग वाली स्क्रीनशॉट सौम्य, धैर्य को भी लेना है तो ले लो और ध्याना आप भी ले लो। Yes, ma'am. मैंने तो ले ली. चलो अब ये पढ़ लो लास्ट, फिर अभी नेक्स्ट लेक्चर में मैं पुलकेशी 2 वतापी वाला आपको सिखाऊंगी। ओके, Okay. चलो आप पढ़ लो इतना। The Chinese traveler Yu Tenzhen हुइंग, इट इज हुइंग सैंग। Huing San visit India during her रेन, reign and स्टडीड Buddhism at Nalanda for 5 years. ये थिंग्स टू नो पढ़ो। Huing Sang stayed in India for 15 years and visited different places. He has described the social, political, and religion conditions of that time. In 645 CE, he returned the China VA Center, Asia, and took with him many books, released and states during his stay, and
He attended the sixth Buddhist religious congregation at Prayag. ओके, मैम यस, ये लास्ट 2 लाइन अब पढ़ लो, फिर मैं स्टॉप करती हूँ शेयरिंग। Okay. There were 100 Buddhist मठ in Harsha's kingdom. in Harsha's kingdom. People lived a simple, Pious and peaceful life based on living by rules of good moral conduct and justice. Cheating and breach of promise यानी promise. कसम तोड़ना। Okay. Breach of promise were considered sinful. यानी पाप। ओके, चलो मैं स्टॉप करती हूँ और आपको एक बार आपका वर्क बता देती हूँ। ठीक है, अब आप लोग को क्या करना है, जितनी स्क्रीनशॉट लिया है वो एक बार लिख देना, चैप्टर पढ़ लेना। नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको पुलकेशी टू बतापी वाला एक्सप्लेन करूंगी। ठीक है, अभी आप लोग धैर्य, सौम्य और ध्याना, आप मीटिंग लीव कर सकते हो। Okay. Thank you, ma'am. बाय बेटा। Bye. बाय मैम। बाय बेटा। शिवाली मैम, जी मैम, मैंने आपको होस्ट बना दिया मैम। ठीक है। ओके, बाय।